हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंज वर्कफ्लो। आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज लेकर आई हूँ, सीबीएसई क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें हम कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे, राइट? तो सबसे पहले करिकुलम देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सीबीएसई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है क्लास 12th का, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज थ्योरी, वन इज प्रैक्टिकल, राइट? थ्योरी सब्जेक्ट आप सबको पता है 50 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है हमारा। प्रैक्टिकल अगेन 50 मार्क्स, उसकी भी मैं डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो आपको दे दूंगी, राइट? नाउ let's understand the curriculum first. So as you can see on my screen, syllabus is divided into two parts. Part A, employability skills, and part B, subject specific skills. एम्प्लॉयबिलिटी में हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं, वेटेज 2 मार्क्स की रहती है सारे चैप्टर्स की। कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योर एंड ग्रीन स्किल्स, राइट? अगर किसी के पास एआई सब्जेक्ट क्लास 9 से है तो उसने ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। बहुत ही कम डिफरेंस है 10th 11th एंड 12th में, राइट? बेसिक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई चैप्टर्स। सो एज यू कैन सी, यूनिट 2, डेटा साइंस मेथोडोलॉजी, which is of 8 marks weightage. Today we are going to start with this chapter, and one by one we will cover the remaining chapters. One more thing to add, as you can see, the Python programming and AI with orange data mining, they are highlighted with sky blue color. It means कि वो थ्योरी में कवर नहीं हो रहे हैं, वो आपके प्रैक्टिकल में कवर होते हैं। बट हम उनको इस तरह से पढ़ेंगे कि कभी थ्योरी में भी आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, and I have created a quiz for you. This quiz is basically to understand the concepts. In this session, there are only 10 questions. So one by one, we'll cover. You will pause the video and you will answer in comments. No matter your answer is right or wrong, nobody is judging you. Nobody is saying कि आपके कितने marks आए. Nobody is asking. But the point is you should judge yourself कि आपको कितने concepts आते हैं, right? So let's start. Question 1 says, what framework did John Rawlings from IBM put forward as a sequence of iterative steps for data scientists to solve the problems? Now it has 4 options, as you can see: data science methodology, design thinking, SDLC, and agile framework. You can pause the video, think for the answer. You can write in comments, or even if you don't want to write in comments, at least just pause the video and think of the answer. And I will tell you the answer of each and every question with explanation, right? So I hope आपने आंसर सोच लिया होगा. Yes, the answer is data science methodology. But before that, let me tell you what is design thinking framework. Design thinking framework, that is DT framework, also related to AI only. It has 5 steps, right? So it is used for solution oriented things. Then we have SDLC, complete software development life cycle. Then we have agile framework, and we have data science methodology. So as you can see, it has 10 steps, 10 iterative steps. We will discuss them in detail. It is the structured sequence of 10 steps in which a problem is understood, and all the way from business understanding business problems to feedback and refinement. Fine. Now let's turn to the second question, that is, how many steps are there in data science methodology proposed by John Rawlings? Already we have covered this question. In the previous question, you must have understood the answer is 10. But the point is, what are those 10 steps? So pause the video, think, or just revise those 10 steps. Write down in comments. Okay, let me reveal the answer. It is like this. 10 steps from business understanding to feedback is divided into 5 modules. Now, as you can see, the very first module we have from problem to approach. Now, in this module, 2 steps are covered: business understanding and analytic approach, right? Then another 2 steps, data requirement and data collection. It is in another module, that is from requirement to collection, right? These two are covered in this module. Then next comes
Data understanding and data preparation, they both lies in from understanding to preparation. This step, that is the third module. The fourth module covers modeling evaluation, and the last is deployment and feedback, as you can see. So these are the 10 steps given by Mr. John Rawlings from IBM Analytics, and they combined are known as data science methodology. And I am very much sure that at least 1 to 2 questions you will get from this topic, from this question in your board's examination, right? So just do. All right, now next question. It is, what is the problem that you are trying to solve is the key question of which stage. There is a question, what is the problem that you are trying to solve? Now you have to tell it comes under which stage, data collection, evaluation, deployment, or business understanding. So wherever you will find these words, now what is the problem, right? So it comes always in business understanding. So as you can see, business understanding is the very first step. The team asks the question, talks to these stakeholders. स्टेकहोल्डर्स वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर्स. अगर आपने 4W प्रॉब्लम कैनवस पढ़ा है तो वहां पे भी आपने ये टर्म पढ़ी होगी. Now, to clearly understand the real problem before deciding on any technical approach. Let's move to the next question. Which analytic approach answers the question, which category does the data belong to? Data किस कैटेगरी में बिलोंग होता है? देखो, जहां भी वर्ड आता है कैटेगरी, वहां आप समझ जाना बात हो रही है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, क्लासिफाई करना. जैसे कोई मेल आई, वो स्पैम है या नहीं है, राइट? कोई, सपोज लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से आपके एग्जाम्स होते हैं, तो या तो स्टूडेंट पास होता है या फेल होता है, राइट? तो जब हमें कैटेगरीज पता होती हैं तो वो क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम होती है. तो हियर द आंसर इज क्लासिफिकेशन. एज यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन that classification sorts data into predefined categories or labels. This differs from regression. Now what is regression? रिग्रेशन में क्या होता है कि आपको कोई नंबर प्रिडिक्ट होता है. जैसे सपोज करो हाउस की वैल्यू प्रिडिक्ट होनी है, राइट? कोई हाउस है, उसकी हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करवानी है, तो वो कैसे होगा? वो रिग्रेशन से होगा. किसी की एज बतानी है कितनी है, किसी की हाइट बतानी है कितनी है, राइट? आपकी परसेंटेज प्रिडिक्ट करनी है कि बोर्ड 12th में कितने मार्क्स आएंगे, तो वो काम होगा रिग्रेशन से, ठीक है? और पास फेल पता करना है, या ये पता करना है कि जो मेल आ रही है वो स्पैम है या नॉट स्पैम, तो वो पता चल जाता है हमें क्लासिफिकेशन से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of analytics summarizes past data to explain what has happened? अब हमारे 4 एनालिटिक्स होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा. डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव. अब 2 तो ये हमारे फ्यूचर वाले होते हैं, राइट? और ये हमारे प्रेजेंट पास्ट वाले होते हैं. तो यहाँ पूछा है पास्ट डेटा. अब पास्ट डेटा में तो 2 आते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक. तो अब कौन सा आंसर होगा? यहाँ पूछा है व्हाट हैज हैपेंड, मतलब क्या हुआ, तो वो आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है? तो एज यू कैन सी डिस्क्रिप्टिव समराइजेस हिस्टोरिकल, मतलब पास्ट डेटा यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मेजर्स लाइक मीन, मोड, मीडियन, ठीक है? और ये बहुत ही बेसिक टाइप का डेटा एनालिटिक्स होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Emails and XML files which have some organization but not a fixed structure are the examples of what? जो emails हैं और जो XML files हैं जिनका कोई fixed structure नहीं है, वो किस में आती हैं? Structured में, semi structured में, meta में, या unstructured में? तो just think of the answer, right? Pause the video, think of the answer. The answer will be semi structured. Why semi structured? Because जो emails हैं उनमें देखो वैसे कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं, जैसे टू हो गया, फ्रॉम हो गया, बॉडी ऑफ द ईमेल हो गया, बट बहुत सारी अनफिक्स्ड भी हैं. जैसे अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट्स हम किसी भी टाइप के अटैच कर सकते हैं. जैसे सपोज करिए इमेज अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, CSV फाइल अटैच कर सकते हैं, किसी भी टाइप की चीज़ अटैच कर सकते हैं. तो इसलिए वो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आता है, मतलब जहाँ फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड दोनों तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं. अब XML की बात करते हैं. XML क्या होता है आपका? XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. अब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में आपको पता होगा कि जो डेटा है वो टैग्स के फॉर्म में आता है ना? टैग्स, क्योंकि प्री डिफाइंड टैग्स तो HTML में होते हैं और यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं आपके किस में? XML में. तो इसलिए वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड में आता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. डेटा गैदर्ड फर्स्ट हैंड थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज और IoT, IoT कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, सेंसर्स, इज कॉल्ड व्हाट?
देखो दो तरीके के डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट हैंड मतलब कि डायरेक्टली आप कहीं से लेते हो, ठीक है, जैसे आप किसी के घर गए, वहां पे आपने सर्वे किया या टीचर ने आपका टेस्ट लिया, दैट इज प्राइमरी डेटा। फिर आपका जो रिजल्ट था उससे कुछ एनालिसिस हुआ, दैट इज सेकेंडरी डेटा। लाइक बुक्स, जैसे बुक्स से डेटा आप फेच करते हो, जैसे वेबसाइट से डेटा लेते हो, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। और मेटा डेटा क्या होता है, यहाँ पे मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। और क्लाउड डेटा तो आपको पता ही है, जो क्लाउड मतलब कि जो आपका डेटा सेव होता है क्लाउड पर ना, जैसे हमारे सिस्टम में स्टोरेज कम होती है, हमारे पास डिवाइसेस में स्टोरेज कम होती है, तो हम क्लाउड पर सेव कर देते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फीचर इंजीनियरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मेरे को। फीचर इंजीनियरिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स फ्रॉम रॉ डेटा, इज द पार्ट ऑफ विच स्टेज? ये किस स्टेज का पार्ट है? स्टेजेस तो अभी हमने 10 पढ़ी थी, है ना। तो इज इट डेटा अंडरस्टैंडिंग, इज इट एआई मॉडलिंग, इज इट डेटा प्रिपरेशन, और इज इट इवेल्युएशन? स्टॉप द वीडियो, थिंक द आंसर, and then I'll reveal it, obviously. So answer will be data preparation. Data preparation में क्या क्या चीजें आती हैं? क्लीनिंग, कंबाइनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, डेटा मॉडलिंग। अब क्लीनिंग का मतलब, डेटा को क्लीन करने से मतलब होता है कि डेटा में जो एबनॉर्मेलिटीज है वो हटाना, इनकम्प्लीट डेटा को कंप्लीट करना, कहीं कुछ मिसिंग डेटा है तो उसको कंप्लीट करना, राइट। तो जैसे हाउस की एज प्रिडिक्ट करानी है तो वो फीचर इंजीनियरिंग से इजीली पॉसिबल है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of modeling focuses on summarizing a data set characteristic without making predictions? अब फिर से वही चार मॉडलिंग है, प्रिडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक। अब यहाँ आ रहा है प्रिडिक्शंस, तो जहां भी वर्ड प्रिडिक्शंस आ रहा हो तो वहां या तो प्रिडिक्टिव होगा या प्रिस्क्रिप्टिव होगा। तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा? विच टाइप ऑफ मॉडलिंग फोकसेस ऑन समराइजिंग अ डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक विदाउट मेकिंग प्रिडिक्शन? सॉरी, विदाउट का मतलब यहाँ नेगेटिव हो गया, तो आंसर इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, विदाउट मेकिंग प्रिडिक्शंस। तो आंसर विल बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या करता है? समराइज करता है डेटा को, करेक्टरिस्टिक्स को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो आंसर क्या होगा आपका? डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी इस सेशन का, फिर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस के और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो वो आप देख सकते हो टू रिवाइज दिस चैप्टर। और एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए बना देती हूँ जिसमें आप कंप्लीट डेटा साइंस मेथोडोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन of this video. Which is the final cyclical stage of data science methodology that refines the model using real world results? फाइनल मतलब लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज अगर मैंने आपको 10 स्टेजेस दिखाई थी, तो लास्ट स्टेज कौन सी थी? ऑब्वियसली इट इज फीडबैक, राइट। अब फीडबैक स्टेज में होता क्या है? फीडबैक स्टेज में इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिप्लॉयमेंट एंड यूजर इनपुट विच आर कलेक्टेड टू रिफाइन द मॉडल। मॉडल को और बेटर बनाने के लिए फीडबैक लिया जाता है, राइट। द लूप्स बैक इनटू द अर्लियर स्टेजेस मेकिंग द होल मेथोडोलॉजी साइक्लिकल, मतलब iterative, repetitive. So that's it from my side in this video. So up next will be part 2 of this video, that is data science methodology. Do subscribe my channel and like the video. Thank you.